Hello everyone, welcome to Guruji English classes. So how are you? How is it going? What are you learning these days? Is there any question? Is there any challenge? Do let me know everything in the comment section, right? So वैसे तो हम सब कुछ YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं, everything is there. So we are teaching everything on YouTube, but उसके बावजूद भी अगर आप लाइव क्लासेस में आना चाहते हो, जो कि हाईली रिकमेंडेड है, जहां पर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जहां पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे लाइफ टाइम की मेंबरशिप के साथ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी की जो क्लास है वो हमारी स्टार्ट होगी 7 बजे, 7 AM, राइट? तब तक क्या कर सकते हैं हम? Till that time, what can we do? So for that time, we can always talk, we can always gossip, we can always think, we can always practice in our mind. What is my name? My name is Sheila. No, my name is Sunil. Okay, what's my name? Where do I live? मैं कहाँ रहता हूँ? Where do I live? What do I do? What do I want in my life? Right? How is my life going? What should I do next? So like this, you can ask yourself questions. खुद से ही सवाल पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए। ये एक अच्छी टेक्निक है। This is a very good technique, right? Okay. So right now I am checking my emails. I'm checking if there is any new email in my inbox. Oh, as of now, there is nothing. Also, I check my YouTube channel and their performances. How are they performing? YouTube channel. These are digital assets these days, right? These are digital assets these days. Okay. So if you have not subscribed to my Guruji English Classes YouTube channel, you can subscribe to that. And there is another channel called Guruji Sunil Chaudhary, where I teach digital marketing. And yes, that is India's best digital marketing. So you can subscribe to that channel also. And these days, I also talk about mindset, spiritual things, motivation, meditation, so many things I talk. So what do? I feel like I talk. If I don't feel like, I don't talk, right? Although I am very consistent person, although I am a very consistent person, I do most of the time what I like. So right now I'm teaching. This is something I really like. So I am doing what I like. I like teaching. I like coaching. I like guidance. So I have so much knowledge, or I can say whatever knowledge I have, I am sharing that. And I have got knowledge in terms of English language, in terms of digital marketing, in terms of search engine optimization, in terms of business automation, in terms of motivation, in terms of success mindset, in terms of law of attraction, in terms of meditation. So much information. And these days I'm learning dance. So the knowledge is, I'm just getting knowledge, accumulating lots of knowledge. One day I will leave this world, right? After getting all the knowledge, one day, that day, maybe after the age of 80, 85, something like that, that will happen. So that day, I will leave the world, right? Will you leave the world or will you stay here forever? So you can decide that. Okay? Like that. So we still have 4 minutes to start the class. So that's how I talk. It's not like I have written it दूसरे टीचरों की तरह, लाइक अदर टीचर्स जो रट्टे मार के आते हैं, जिनको किसी भी सेंटेंस का लॉजिक नहीं पता होता। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, देन गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न गुड क्वालिटी इंग्लिश, गुड क्वालिटी इंग्लिश, and faster, I would say. So you have that chance. At other places, you don't have that chance, right?
Okay, so now I'm checking my WhatsApp messages. Do you check your WhatsApp messages? Oh yeah, whole day. I spend whole day checking my WhatsApp messages. Don't do that. Okay, make a timetable at some fixed time. You check your WhatsApp messages. Okay. But what I feel right now is that whole day we keep checking WhatsApp messages. At least WhatsApp messages we check whole day. So when you have lots of work to do, when you have lots of work to do, that time you can always make a timetable so that you don't check your WhatsApp messages regularly, again and again, frequently. No need to check, right? No need to check. Check at some specific intervals. Check at some specific intervals. No need to check again and again and frequently. Don't do that. So your timetable should be fixed. If your timetable is not fixed, your life is not fixed. Your timetable is not fixed and you do whatever you want at any point of time, then your life will take you at anywhere, in any direction, the way it wants. So if you want some definite results in your life, then you have to do something definite. Otherwise, if you are doing some by chance, then your life will become by chance. So what do you want? You stop the video, pause the video, and tell me in the comment section. You want by chance life or you want some definite life, some sort of definite life? What do you want? You tell me, okay? I'm not forcing you. You just tell me what do you want in your life. That is something you need to tell me. Okay. So we still have a few seconds to start the class, but still I wanted to speak with all of you in this extra time, or I would say spare time. So I started the class little earlier. But whether I started the class earlier or whether I will start the class at 7 a.m., anyways, I'm speaking English and you are able to understand some different, some natural, some real life sentences. Am I right? Just pause the video. Whenever I ask you a question, pause the video, put the comment. Yes, right, no, not right, whatever. So that is one tip. So whenever I ask you a question, pause the video, answer the question in the comment section with maybe with the timestamp. Timestamp, you understand? Like for example, I started the lesson at 7. Okay, so maybe 3 minutes of video passed. At 3 minutes 12 seconds, I asked a question. So you put three, two dots, colon, 3 colon 12, 3 minutes 12 seconds. Then you say yes or no. That's how you put timestamp and you give the answer. And I will get to know that you are giving yes to 3 minutes 12 seconds question. The thing I asked at 3 minutes at and 12 seconds. Okay. So ये भी चीज अगर आपके लिए नई है टाइम स्टैम्प वाली, देन वीडियो को रोको दोबारा से एंड देन गो कमेंट्स बताओ कि हाँ न्यू और ओल्ड ऑलरेडी वट एवर लाइक दैट. So welcome to Guruji English classes once again. Let's get started with today's lesson. So what is the today's lesson? So I'm always taking my lessons from ChatGPT. You can say, Sunil, you are taking all lessons from ChatGPT. What is the use of coming to you, coming to your channel, coming to your videos? We can also take the things from ChatGPT. So my dear friend, I do not take content from my some spiritual centers. I always take content from books. I always take content from websites, from Oxford website, Cambridge website, Webster website. So I do not create English. English was created long back, and I learned it. Now I take it from somewhere. I research, then I share the knowledge with you. Okay. So from somewhere I have to take. Now the Chat GPT is the center point of knowledge. So ChatGPT has all the knowledge. It has taken all the knowledge from all over the world. So I just go to ChatGPT and take the knowledge. Then you say,
Sunil, we can directly go to ChatGPT and we can take the knowledge. Okay, then go. But the way I teach, the way I explain, the stories I tell, you will never get to know. Right? So my personality, my sentences, my explanation, there is something will help you to learn. तो चैट जीपीटी तो कंप्यूटर की तरह आएगा जाएगा, तो चैट जीपीटी से यू कैन लर्न. Nobody is stopping you. For 100% ChatGPT can teach you, but maybe the way of my teaching can help you faster in learning faster. Am I right? Awesome. So today's lesson is we have to express our feelings. So देखो, लेसन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई. चैट जीपीटी थोड़ी सुनाएगा. चैट जीपीटी इज नॉट गोइंग टू टेल यू एनी स्टोरी. वो तो चैट जीपीटी को आप बोलोगे, ओके चैट जीपीटी टेल मी वन स्टोरी, आई वांट टू बी एंटरटेन्ड. ChatGPT will tell you the story, right? But here I am telling you the story of everything real, some instant, some spontaneous. Spontaneous, you understand? मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं था मेरा. आई डिड नॉट हैव एनी प्लान. सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग. एक है हमारे दूसरे भाई, वो आते हैं 2 3 दिन 4 दिन पूरा प्लानिंग करते हैं. टेंस पढ़ाना है, इसे पढ़ाना है, ता है, ती है, ते है पढ़ाना है, वो पूरा प्लानिंग करते हैं. एक हम हैं जो हम कभी प्लानिंग नहीं करते हैं. वी जस्ट गो रैंडम बिकॉज अपना दिमाग में सब सेट है. कई बार पढ़ा चुके हैं, 50 100 बार पढ़ा चुके हैं, रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझते हैं. तो वी कैन टीच एनी लेसन विद आवर ओन एक्सपीरियंस. सो लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली माइंड को बोलना पड़ता है कि आज हम ये पढ़ाने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फीलिंग्स एंड इमोशंस. वाओ. सो आफ्टर हैविंग a sip of tea, I feel awesome. After having a sip of tea, I feel awesome. So I feel. This is called my emotion. You can say I'm happy today. I'm happy today. So I am happy क्या है आपका? फीलिंग, खुश, फीलिंग. अब फीलिंग की बात चल रही है तो चैट जीपीटी थोड़ी बताएगा आपको कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी सक्सेस आती है, जिंदगी की जो सबसे बड़ी सक्सेस आती है वो फीलिंग से आती है. आप बोलोगे क्या कह रहे हो गुरुजी, क्या बात कर रहे हो आप? जी हाँ, लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस किससे आती है दोस्तों? फीलिंग से. कैसे आती है? अगर आपको बहुत रईस आदमी बनना है तो आपको फील करना होगा कि मैं बहुत रईस हूं. आप कहोगे यार गुरुजी पगला गए हो आप, मतलब आपका हो गया दिमाग खराब. एक तो मतलब फालतू बात करते हो, इंग्लिश पढ़ने आए फालतू बात कर रहे हो. जब हम रईस हैं ही नहीं तो रईस फील कैसे करेंगे? तो भैया ये थोड़ी सी अजीब सी बात है. अगर बनना है रईस तो फील करना पड़ेगा. फील करोगे वही मिलेगा. तो द सीक्रेट इज वट एवर यू फील यू गेट. व्हाट इज द सीक्रेट? कमेंट करके बताना आप टाइम स्टैम्प के साथ. वट एवर यू फील यू गेट. जो भी आप फील करते हैं. सो नेक्स्ट फीलिंग इज उदास. शी फील्स सैड. उसको दुख होता है. शी फील्स सैड अबाउट द न्यूज. तो मैंने बड़ी मुश्किल से, या ऐसे कह सकते हैं मैंने प्रैक्टिस किया है अच्छा फील करना. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो कोई बैड न्यूज़ पढ़ी, कोई एक्सीडेंट पढ़ा, कोई रेप पढ़ा, कोई दुर्घटना पढ़ी, तो मैं दुखी सा हो जाता था. अजीब सी हालत हो जाती थी मेरी. बट अभी मैं पढ़ता हूँ तो नहीं होती. जैसे कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, रेप हो गया, तो मैं दुखी नहीं होता. अब आप कहोगे आप तो भाई साहब बड़े जालिम इंसान हो, दुखी नहीं होते हो. तो मेरे दुखी होने से सिचुएशन चेंज नहीं होती. वो जिसका एक्सीडेंट होना था हो गया. मेरे दुखी होने से उसके यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज. बट अगर मैं दुखी हो गया तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जैसा मैं फील करता हूं वैसा ही मेरे साथ होता है. अगर मैं दुखी फील करूंगा तो आगे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी कि मैं दुखी फील हो जाऊंगा. अगर मैं खुश फील करूंगा तो आगे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जब मैं खुश फील करूंगा. अगर मैं रिच फील करूंगा तो आगे भी बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जहां मैं रिच फील करूंगा. सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग. बहुत सारे लोगों को तो बहाना चाहिए होता है.
अरे भारत देश में कुछ नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ है, फलाना है, ढिमकाना है, सब भ्रष्टाचार है। एक हल्का सा पॉइंट छेड़ दो भाई साहब, पूरा कीचड़ निकाल के रख देंगे सामने, कचरा निकाल के रख देंगे डिस्कशन में। तो वो फीलिंग ऐसा रहता है। और उनका क्या देखा, स्टेटस ऐसा गरीबों वाला ही रहता है। तो आपको अमीर बनना है तो एक तो बुराई किसी की नहीं करनी है, दूसरा बुरा सोचना भी नहीं है और बुरा महसूस भी नहीं करना है। बुराई करनी भी नहीं है, बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा महसूस भी नहीं करना है। गांधी जी तो बच्चे थे, वो ज्यादा जानते नहीं थे, मैं आपको बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, है ना। चलो स्माइल कर लो। ओके। सो द नेक्स्ट फीलिंग इज सैड, जो कि कभी होना ही नहीं, हमने हमने तो हमेशा खुश रहना है। थर्ड फीलिंग इज एंग्री। सो एंग्री फीलिंग क्या होती है? एंग्री मीन्स गुस्सा। ही इज एंग्री विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से गुस्सा है। देखो स्पोकन इंग्लिश में आना चाहिए, बट एंग्री तब होता है आदमी जब वो कमजोर होता है। जैसे मैं कई बार गुस्सा होता हूँ तो वो मेरी कमजोरी का बड़ा वो है, क्या है वो, दैट्स माई वीकनेस। तो अगर मैं आपके ऊपर कुछ गुस्सा कर रहा हूं तो समझो इट्स माई वीकनेस। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे, मतलब आपको, मुझे, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो इट्स आवर वीकनेस। ऐसे चेतन तुमने होमवर्क नहीं किया है, तुम सीखना नहीं चाहते हो, तुम ये वो फलाना ढिमकाना, मैं तुमको डांट रहा हूँ, सो इट्स माई वीकनेस। देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये बड़े बड़े सीक्रेट हैं जो काफी देर में समझ में आते हैं लाइफ में। आप जल्दी समझ लो तो बढ़िया है। क्या सीक्रेट बताया? एंग्री एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। सो डोंट गेट एंग्री, बिकॉज एंग्री मीन्स यू आर वीक, एंड यू आर स्माइलिंग इट मीन्स यू आर स्ट्रांग। Anger means weakness, smiling means strength. Sentence: he is angry with his friend. Excited, they are excited for the trip. Excited means उत्साहित, और हमें तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज लेसन। मैं बहुत उत्साहित हूं जो मैं लेसन आपको दे रहा हूं, बहुत उत्साहित हूं मैं। राइट। नर्वस, घबराया हुआ, मैं कभी नहीं होता। नर्वस, घबराया हुआ। आई एम नर्वस अबाउट द एग्जाम, में परीक्षा के बारे में घबराया हुआ हूँ। तो ये सिर्फ सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। ओके। टायर्ड, थका हुआ। शी इज टायर्ड आफ्टर वर्क, वो काम के बाद थक गया है। टायर्ड, थका हुआ। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि मेरे एक दोस्त ने पिछली साल एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मेरे एक दोस्त ने पिछली साल एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था मेरे पड़ोस में, और उसके अभी अभी 2 घंटे पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। और हम डिजिटल कोच हैं, हमारे 7,000 हैं। वो डिजिटल कोच नहीं है, उनके 1 लाख हैं। तो ज्यादा दिमाग लगाने वालों के सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते हैं, कम दिमाग लगाने वालों के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं इतना दिमाग क्यों लगाता हूँ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कम दिमाग लगाना चाहिए, और काम लगातार करना चाहिए मन से। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वो अलग बात है कि हम अपने यूट्यूब चैनल से ज्यादा पैसे कमाते हैं, और वो मुझे नहीं पता कितने कमाते हैं। ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है, तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। बट यस, सब्सक्राइबर से एक अच्छी चीज है होना। तो आई एम सरप्राइज्ड। और मेरा चैनल जो है 15 साल पुराना है, उनका चैनल 1 साल पुराना है। सो ये एक और मजेदार बात है। राइट। तो आई एम सरप्राइज्ड, मैं डरा हुआ हूं। आई एम स्केयर्ड। एक सेंटेंस है, स्केयर्ड, द चाइल्ड इज स्केयर्ड ऑफ द डार्क। स्केयर्ड के बाद ऑफ आता है। द चाइल्ड इज स्केयर्ड ऑफ द डार्क। स्केयर्ड फ्रॉम द डार्क नहीं आएगा। अंधेरे से डर लगता है बच्चे को, तो अंधेरे से मतलब स्केयर्ड फ्रॉम नहीं आता, स्केयर्ड ऑफ आता है। ओके। स्केयर्ड ऑफ द डार्क, द चाइल्ड इज स्केयर्ड ऑफ द डार्क। कंफ्यूज्ड, भ्रमित। कंफ्यूज्ड, भ्रमित। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड पैदा होते हैं, कंफ्यूज्ड जिंदगी बिताते हैं, कंफ्यूज्ड ही मर जाते हैं। और उनसे अगर आप बात करोगे तो आप भी कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो अगर आपको पता लग जाए कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, तो उससे दूरी बना के रखे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को फ्यूज कर देगा। ओके। नेक्स्ट इज बोर्ड। बोर हो जाते हैं लोग। दे आर बोर्ड विद द मूवी। दे आर बोर्ड विद द मूवी, वो मूवी से बोर हो गए। 99% लोग इस दुनिया में बोर हो जाते हैं, और वो फेल हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बोर होना पड़ेगा। बोर होना मतलब क्या होता है?
सेम काम को बार बार करना, दैट इज कॉल्ड बोर। तो क्या सीख रहे हैं आज हम लोग? फीलिंग्स एंड इमोशंस। बोर होना, कंफ्यूज होना, स्केयर्ड होना, सरप्राइज्ड, टायर्ड, नर्वस, एंग्री, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड। ठीक है, तो चलिए कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते हैं। आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी। मैं खुश महसूस कर रहा हूं। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनो। मैं खुश महसूस कर रहा हूं, कर रहा हूं। तो आपने एक रट्टे मारे होंगे इंग्लिश में कि रहा हूं, रही है, रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो आईएनजी आएगा। ऐसा रट्टा मारा होगा बचपन में। बट इसकी इंग्लिश क्या है? मैं खुश महसूस कर रहा हूं की इंग्लिश क्या है? आई फील हैप्पी। इसकी इंग्लिश ये नहीं है कि आई एम फीलिंग हैप्पी। आई एम फीलिंग हैप्पी सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा चुल्ल दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। पता करके बताना मुझे, चैट जीपीटी से पूछना, गूगल से पूछना, किसी से भी पूछना, और मुझे भेजना वीडियो बनाकर, वीडियो बना के भेजना कि अपनी अपनी शक्ल लगा के कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ की इंग्लिश आई एम फीलिंग हैप्पी नहीं होगी, आई एम आई फील हैप्पी होगी। आई एम फीलिंग हैप्पी नहीं होगी, आई फील हैप्पी होगी। ऐसा क्यों होगा? बाद में रिसर्च करना, अभी वीडियो छोड़ के मत करने लगना। पूरा पूरा वीडियो देख लेना उसके बाद। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी फील्स एक्साइटेड बिकॉज इट्स हर बर्थडे। शी फील्स एक्साइटेड बिकॉज इट्स हर बर्थडे। वो खुश है आज, वो खुश महसूस कर रही है आज क्योंकि उसका जन्मदिन है। कर रही है, तो शी इज फीलिंग एक्साइटेड नहीं आएगा, शी फील्स एक्साइटेड आएगा। इसको लिख सकते हो आप, शी इज फीलिंग एक्साइटेड रॉन्ग, शी फील्स एक्साइटेड इज करेक्ट। और इसमें भी ऐसा क्यों है? ये भी वो पहले वाला क्वेश्चन मिलता जुलता है। दे आर नर्वस अबाउट द प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन को लेके नर्वस है, नर्वस, नर्वस आ गए हैं भैया हमार। दे आर नर्वस अबाउट द प्रेजेंटेशन, दे आर नर्वस अबाउट द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज ही इज फीलिंग टायर्ड टुडे। तो मैंने जैसा पहले बताया ये सेंटेंस गलत है। ही इज फीलिंग टायर्ड टुडे। सही सेंटेंस क्या होगा? ही फील्स टायर्ड टुडे, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। फीलिंग में इस तरह के सेंटेंसेज में आईएनजी नहीं आता। बाद में बताएंगे, पूछ लेना। आज आपको होमवर्क दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स। जब मैंने परिणाम देखे तो मैं आश्चर्यचकित था। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स। जब मैंने परिणाम देखे तो मैं आश्चर्यचकित था। अब आप किसी की फीलिंग्स पूछ सकते हो, आप किसी की फीलिंग्स पूछ सकते हो। यू कैन आस्क समबडीज फीलिंग्स। सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग पूछ सकते हो आप। यू कैन आस्क द अदर पर्सन फीलिंग्स। हे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे गलत है। सही क्या होगा? चैट जीपीटी गलत बता रहा है, मैं सही कर रहा हूँ। देखो, ये चैट जीपीटी से डायरेक्ट सीखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देख लो, गुरुजी का फायदा ऐसी थोड़ी है। रट्टू तोते नहीं है ना हम। चैट जीपीटी तो गलत बता रहा है, हम सही कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे गलत है सेंटेंस। हाउ आर यू फीलिंग टुडे सेंटेंस गलत है। आपको बोलना है हाउ डू यू फील टुडे। हाउ डू यू फील टुडे, हाउ डू यू फील टुडे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं। हिंदी में आएगा कर रहे हैं, बट इंग्लिश में आएंगी नहीं आएगा। हाउ डू यू फील टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू ओके। क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके। तुम दुखी से लग रहे हो। यू लुक सैड। आर यू ओके, यू लुक सैड। तुम दुखी से लग रहे हो। यू लुक सैड। आर यू ओके, तुम दुखी से लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है तुमने, शेविंग विंग बढ़िया से सेट नहीं कर रखी है, आधे बाल सफेद हैं आधे काले हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं इंग्लिश टीचर। अबे इंग्लिश टीचर तो टाई वाई लगा के आते हैं, तुम तो ऐसे ही आ गए हो।
दिक्कत क्या है तुम्हारे संग? अबे तुम हमारी दाढ़ी देखने आए हो कि अंग्रेजी सीखने आए हो? तुम्हारा फोकस गलत जगह पे है, दाढ़ी पे नहीं होना चाहिए, इंग्लिश पे होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं उन पर फोकस होना चाहिए। ठीक है। सो यू लुक सैड, आर यू ओके? यू लुक सैड, आर यू ओके? तुम दुखी से लग रहे हो। यू आर लुकिंग सैड, तुम दुखी से लग रहे हो। हिंदी में फिर आ रहा है लग रहे हो, आईएनजी, बट इंग्लिश में नहीं आ रहा है यू आर लुकिंग सैड ना, यू लुक सैड। इंग्लिश में नहीं आ रहा है। यो ही बात सी, ये तो होमवर्क दिया आपको। व्हाट्स रॉन्ग? अरे क्या बसड़ है, क्या दिक्कत है, मामला क्या है? व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? क्या बसड़ है, क्या दिक्कत है, मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई? व्हाट्स रॉन्ग? यू सीम अपसेट, तुम अपसेट से लग रहे हो, तुम्हारी सेटिंग खराब सी लग रही है हमको। यू सीम अपसेट। और ये अपसेट तब होता है आदमी जब या तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, ब्रेकअप हो जाए, या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए, या नौकरी छूट जाए, या लोन कैंसिल हो जाए। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आदमी अपसेट हो जाता है। व्हाट्स रॉन्ग? यू सीम अपसेट। व्हाट्स रॉन्ग? यू सीम, सीम माने लगते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? लग रहे हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लगते हो। यू सीम अपसेट। यू सीम अपसेट, तुम दुखी से लग रहे हो, अपसेट से लग रहे हो, तुम्हारी सेटिंग वेटिंग बिगड़ी हुई है। सब कुछ ठीक है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? सब ठीक तो है तुम्हारे साथ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? वाई डू यू फील नर्वस? तुम नर्वस क्यों फील करते हो? वाई डू यू फील सैड? तुम दुखी फील क्यों करते हो? वाई डू यू फील टायर्ड? तुम थकान महसूस क्यों करते हो? वाई डू यू फील हैप्पी? तुम खुश महसूस क्यों करते हो? वाई डू यू फील सो? तुम ऐसा महसूस क्यों करते हो? बोलो ज्यादा, लिखो कम, लिखो जरूर। बोलो ज्यादा, लिखो कम, लिखो जरूर। दैट इज द सीक्रेट। बोलो ज्यादा, लिखो कम, लिखो जरूर। बोलो ज्यादा, लिखो कम, लिखो जरूर। दिस इज द फॉर्मूला। लिखना जरूरी है। राइटिंग इज इम्पोर्टेंट बट स्पीकिंग 10 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट। सो स्पीक मोर, राइट लेस, बट डू राइट। बोलो ज्यादा, लिखो कम, पर लिखो जरूर। बोलो ज्यादा, लिखो कम, पर लिखो जरूर। स्पीक मोर, स्पीक मोर, राइट लेस, बट डू राइट। स्पीक मोर, राइट लेस, बट डू राइट। ओके। बोलो ज्यादा, लिखो कम, पर लिखो जरूर। पर लिखो जरूर, पर लिखो जरूर, बट डू राइट। किसी भी चीज पर जब जोर देके बोलते हैं हम, बैठ तो जाओ, सारी बातें खड़े हो गई करोगे? बैठ तो जाओ, बैठ तो जाओ की इंग्लिश क्या है? डू सिट, या फिर एट लीस्ट सिट। दो तरीके से बन सकती है, डू सिट या फिर एट लीस्ट सिट। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अब बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लोग आपसे पूछेंगे आपकी फीलिंग्स के बारे में। तो कोई पूछते हैं आपसे तो आप कहोगे आई एम फीलिंग हैप्पी। मैंने आपको बताया ये गलत है, चैट जीपीटी यहां पर गलती कर रहा है। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू जॉब। अरे यार खुशी तो मिलती है नई नौकरी की, आज मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, बट मैंने भी 5 नौकरी की हैं तो खुशी तो मिलती है। बट तब मुझे बताता नहीं था कोई, पिताजी बताते नहीं थे, भैया बताता था नहीं, किसी ने बताया नहीं था यार। अगर बता देता ना कोई तो मैं नहीं करता नौकरी वोकरी। साला 1 1.5 घंटा जाने में, 1 1.5 घंटा आने में, 8 9 घंटे में तेल निकल जाता था मेरा, बैंड बज जाती थी। नोबडी वॉज देयर टू गाइड मी। आपको आज गाइड करने के लिए हजारों लोग हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है। हमारे जमाने में नेट वेट नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। धुन थी बस, धुन 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 धुन, धिन धना धिन, दैट्स इट। धुन के बलबूते बहुत कुछ किया। सो आई फील हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी नहीं आएगा, आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू जॉब। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू क्लाइंट। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू गर्लफ्रेंड। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यू होम। आई फील हैप्पी बिकॉज I have reached here in Shimla.
I feel happy because I have reached Switzerland. I feel happy because I have reached Miami Beach. I feel happy because I am in Bali, Indonesia. I feel happy because I'm coming to Thailand for the 10th time. I feel happy because I am riding this Harley Davidson bike. I feel happy because I have got my favorite car, Mercedes Black Maybach. I feel happy because I have finally got my Rolls Royce Phantom. I am very happy because today I have got this amazing Rolex golden watch. This is called feeling. Feel, 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 feel. The game is of feeling. Feeling का game है. Not so good. I am a bit tired. किसी ने पूछा आपसे कैसे हो भैया? How are you? आप कह सकते हैं Not so good. I am a bit tired. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. ज्यादा बढ़िया नहीं हो. बट आपको तो ऐसा कहना ही नहीं है ना. अभी अभी तो सीक्रेट बताया है. साला जब तुम थके हुए हो, बिल्कुल खराब हो, अंदर से फटी पड़ी हो, तभी बाहर से क्या बोलना है? आपको बोलना है awesome, life is amazing, super awesome. बट हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए बोल सिखा रहा हूँ. नॉट सो गुड, आई एम बिट टायर्ड. ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ, थोड़ी सी लगी पड़ी है. ओके. फिर पूछता है कोई आदमी कैसे हो भाई, हाउ आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो आई एम डूइंग वेल. मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, थैंक यू. सब बढ़िया चल रहा है. आई एम डूइंग वेल थैंक यू, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, आई एम डूइंग वेल थैंक यू फॉर आस्किंग. फिर पूछता है कोई हे सुनील हाउ आर यू, यू कैन से आई फील अमेजिंग. आई फील अमेजिंग. I feel amazing because the life is so good. I am very happy today. I am very happy today. She is nervous about the exam. She is nervous about the exam. Why do you feel sad? Why do you feel sad? Why do you feel happy? We got bored watching the movie. We got bored watching the movie. Is everything all right? Is everything all right? Is everything all right? Hi, how are you feeling today? Hi, how do you feel today? Hi, how are you feeling today? देखो, स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपका चालान कट जाएगा. आपने कोई गलत सेंटेंस बोला तो जेल हो जाएगी. ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही गलत सेंटेंस बोले चालान कट जाएगा. जैसे स्कूटर पे बिना हेलमेट के जाते हैं चालान कट जाता है. अभी ऐसा इंग्लिश में नहीं होगा. तो बट फिर भी सही इंग्लिश सीख जाओ तो ज्यादा बढ़िया. टूटी फूटी भी बोल रहे हो तो ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि बोल रहे हो, स्टार्ट कर दिया है. So, hi, how do you feel today? You can say, I feel a bit tired. I didn't sleep well last night. I feel a little tired. I didn't sleep well last night. Oh no, why couldn't you sleep? Oh no, why couldn't you sleep? तुम सो क्यों नहीं पाए? Oh no, why couldn't you sleep? क्या हुआ? सोया क्यों नहीं भाई? Why couldn't you? सोई क्यों नहीं? मतलब लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे हम. Why couldn't you sleep? I was nervous about the job interview. I was nervous about the job interview. तो ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में कुछ नया होता है, या तो नींद नहीं आती. जैसे कि कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे नींद नहीं आएगी. कल मेरा एग्जाम है तो नींद नहीं आएगी. कल मेरा एग्जाम है मतलब 10 एग्जाम हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बट एक एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है कल, तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी. बहुत सारे लोगों को आ जाती है, मुझे नहीं आती. मेरे साथ ऐसा होता है. कल मेरा यूपीएससी का एग्जाम है तो मुझे पूरी रात मुश्किल से नींद आएगी. और जो 9 बजे सोना चाहिए था मुझे नींद आएगी 2 बजे. और 6 बजे जगना चाहिए था. तो अब नींद 2 बजे आई थी रात को, तो सुबह सुबह ऐसे उठेंगे भूत की तरह. तो उससे क्या है ना, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है. बट हकीकत यह है कि नींद नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया क्लाइंट मिल गया, तो उस रात तो नींद नहीं आएगी. मेरे को तो नहीं आती भाई. ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं. नहीं आती है नींद. नौकरी छूट जाए तो नींद नहीं आती. ब्रेकअप हो जाए तो नींद नहीं आती. मतलब कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, कुछ ज्यादा दुखी टाइप का हो जाए हमारी लाइफ में तो नींद नहीं आती है. तो ऐसा नहीं है कि नर्वस रहते हैं, बस एक्साइटमेंट होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, नींद नहीं आती है. आपके साथ होता है ऐसा? कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे वीडियो पर. सो आई वॉज नर्वस अबाउट द जॉब इंटरव्यू. आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड. आई होप यू फील बेटर सून. आई होप यू फील बेटर सून. उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही अच्छा फील करेंगे. आई होप यू फील बेटर सून. उम्मीद करता हूँ, राइट.
I understand. I understand. I understand. I understand. I understand. I understand you. I understand you. Uh, I understand you feel better soon. I understand you feel better soon. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू. थैंक यू भी मतलब 50 तरीके से बोला जा सकता है. प्रैक्टिस करो यार. थैंक यू मतलब मुंडी 3 बार हिलाई, फिर थैंक यू बोला, फिर 4 बार हिलाई. ये है थैंक यू. ये एक इमोशनल दिल से निकलने वाला थैंक यू है. एक थैंक यू. जैसे लठ मार के थैंक यू बोल रहा भाई, आसान कर दिया थैंक यू बोल के. ऐसा थैंक यू नहीं बोलना, ठीक है भाई. तो आप पूछो थैंक यू. आप कैसे हो? हाउ अबाउट यू? आप कैसे हो? हाउ अबाउट यू? आई एम एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड. I am excited because I am going on vacation tomorrow. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कल छुट्टी बजा रहा हूँ. मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ. मैं तो रोज छुट्टियों पर रहता हूँ भाई. मैं तो रोज ही छुट्टियों पर रहता हूँ. आई एम एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टुमारो. अपन तो भाई 365 दिन लगभग छुट्टी पे ही रहते हैं. लगभग लगभग छुट्टी पर ही रहते हैं. दैट्स वंडरफुल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दैट्स वंडरफुल. दैट्स अमेजिंग. दैट्स ऑसम. दैट्स गुड. दैट्स माइंड ब्लोइंग. दैट्स गुड. दैट्स गुड. दैट्स वंडरफुल. दैट्स माइंड ब्लोइंग. दैट्स अमेजिंग. दैट्स सो गुड फॉर यू. हैव अ ग्रेट टाइम. मजे करो. हैव अ ग्रेट टाइम. हैव अ ग्रेट टाइम. हिंदी में नहीं होता शायद ऐसा. हिंदी में तो ऐसा होता हाँ भाई कारो है. अरे बहुत बढ़िया, मैं कल छुट्टी पे जा रहा हूँ. अच्छा ठीक है तो जाओ. ठीक है तो जाओ. बट इंग्लिश में बोलते हैं वाह वंडरफुल, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम. तो कहीं कहीं इंग्लिश जो है कहीं कहीं, ज्यादातर तो हिंदी अच्छा करती है. कहीं कहीं इंग्लिश जो है अच्छा परफॉर्म कर जाती है. ओके. सो आपका एक एग्जाम बहुत अच्छा हो गया. बहुत अच्छा एग्जाम हो गया. सो यू कैन से आई फील सुपर ऑसम. आई पास्ड माई एग्जाम. I feel ecstatic. Xecstatic. I feel ecstatic. I passed my exam. I feel awesome. I passed my exam. I feel mind blowing. I feel so joyful. Right? And I feel so good. I passed my exam. आपकी चाबी खो गई स्कूटर की. I am frustrated because I lost my keys. क्या यार, मेरी चाबी खो गई यार. कैसे खो गई? मैं ध्यान क्यों नहीं रखता हूँ. So I get frustrated. I आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई लॉस्ट माई कीज. मेरा दिमाग खराब है क्योंकि मेरे स्कूटर की चाबी खो गई है. तो ये सब नॉर्मल सेंटेंसेज हैं, बट लाइफ में आपको चुल चुल चिल रहना चाहिए. चिल एकदम. ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए. ओके. सो आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई लॉस्ट माई कीज. आई एम फीलिंग नर्वस अबाउट गिविंग द स्पीच. आई एम फीलिंग नर्वस अबाउट गिविंग द स्पीच. मुझे भाषण देना है, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग नर्वस अबाउट गिविंग द स्पीच. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे. अरे तो भैया बर्थडे नहीं होगा तो खुश नहीं रहेगा, पर चल ठीक है आज बर्थडे, ज्यादा खुश रह ले. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे. आई एम स्केयर्ड. मुझे डर लग रहा है. आई एम स्केयर्ड आफ्टर वॉचिंग दैट स्केरी मूवी. वो डरावनी मूवी देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है. होता है भाई साहब, मूवी देख देख के कई बार डर लग जाता है. आई एम स्केयर्ड आफ्टर वॉचिंग द स्केरी मूवी. तो कमेंट करके बताओ आपने स्त्री 2 देख ली. अब आप कहोगे यार गुरुजी आपसे इंग्लिश सीखने आते हैं, आप मूवी वूवी की बात मत किया करो. बट भैया मूवी देखने से आपका होता है कुछ फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता. दिमाग की दही होती है, दिमाग खुलता है, दिमाग का ढक्कन खुलता है, नई चीजें सीखते हैं आप. डायरेक्टर की कल्पना सीखते हैं आप. बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ. सो स्त्री 2 जाके देखनी है सिनेमा हॉल में. थोड़ा पैसा वैसा खर्च करो तो मजा आएगा. ओके. अगला होमवर्क है आज. आपका होमवर्क क्या है कि पिछली बार जो भी आपके साथ घटना हुई, कहीं गए आप, कहीं से आए आप, तो कैसा महसूस हुआ. थोड़ी सी घटना को लंबा सा लिखना है कि ये हुआ मैंने ऐसा फील किया, ये हुआ मैंने ऐसा फील किया, ये हुआ मैंने ऐसा फील किया, ये हुआ ऐसा फील किया.
तो ये आप लिखना है आपको, दिस इज योर होमवर्क। दूसरा होमवर्क है आपका, दिन में सुबह से शाम तक क्या क्या होता है और तब आप कैसा कैसा महसूस करते हैं। सुबह जगने से लेके रात तक क्या क्या होता है आपकी लाइफ में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, और तब आप क्या क्या फील करते हैं। ये आपको जो है लिखना है। हिंदी में लिखिए, फिर उसको इंग्लिश बनाइए कच्ची पेंसिल से। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेन से लिख सकते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश कच्ची पेंसिल से बनाइए, क्योंकि अगर कोई गलती वलती हो गई तो इरेजर का यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है। राइट। सो आपको आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी जो भावनाएं हैं कैसे बतानी है, अपनी फीलिंग्स कैसे बतानी है सामने वाले को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, सामने वाले के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर होती है। आपकी रिलेशनशिप बेहतर होती है सामने वाले से। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं बातचीत करके सॉल्व हो जाती है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा आगे बढ़कर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, होमवर्क करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यही है तरीका आगे बढ़ने का, जिंदगी में प्रोग्रेस करने का। और कोई तरीका नहीं है। तो आज हमने सीखा इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।